Your words can be motivation and inspiration for someone, or it can be someone's depression too. Don't you think so? You can observe it. You get motivated or depressed because of the words which are uttered by someone. Your words build up your own personality in someone's mind. Your words can be energize someone for a lifetime, or it may destroy someone's persona too. Words are the real provenance of an energy. Also, it is the real fountainhead of a knowledge and information too. That's why we can't de-emphasize the real value of our words. So let's come together and learn the vocabulary and feel the power of our words. Hello everyone, I'm Satish and this is our second session we are dedicating to learn phrases and idioms. पिछले सेशन में हमने 10 phrases and idioms को learn किया था. इस सेशन में हम नई 10 phrases and idioms को learn करेंगे, साथ में हम उनके examples भी सीखेंगे और हम देखेंगे कि अगर उनको phrases और idioms के साथ इस्तेमाल किया जाए और एक बार उनके बिना इस्तेमाल किया जाए तो कितना बड़ा डिफरेंस दोनों में आता है. मुझे हमेशा पूछा जाता है कि सेंटेंस में phrases and idioms इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है. सो लेट्स डिस्कस अबाउट इट. phrases and idioms का सबसे बड़ा अगर कोई काम होता होगा या कोई फायदा होता होगा तो एक ही है कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन बिना कुछ ट्रांसलेशन करे अगर हम कम से कम शब्दों में देना चाहे तो उसके लिए हम phrases and idioms का इस्तेमाल कर सकते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट उसके लिए हमें कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत भी नहीं है. सो व्हाट इज दैट एग्जैक्टली? इट कैन बी गिवन एन एक्सप्रेशन टू द सेंटेंस विद द डीप सेंस विदाउट एक्सप्लेनिंग इट. क्या मतलब हुआ कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन अगर हमें कहनी होगी और बिना ट्रांसलेशन से कहनी होगी तो हम phrases and idioms का अगर इस्तेमाल करें तो हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन बहुत ही कम शब्दों में हम बता सकते हैं. एंड दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन वन नेटिव स्पीकर एंड अ पर्सन हु टॉक्स इंग्लिश एज अ सेकंड एंड थर्ड लैंग्वेज. तो वो बहुत बड़ा डिफरेंस दोनों में होता है. सो गाइज, इफ यू यूज phrases and idioms इन अ वेरी प्रॉपर मैनर तो आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन बहुत ही कम शब्दों में देने की एक स्किल आ जाएगी. And that's why we need to learn phrases and idioms too. So let's learn 10 phrases for a day, and today's first phrase we have, that is halcyon days. What's the meaning of halcyon days? Halcyon days का मतलब होता है अतीत के सुनहरे दिन. Means whenever you talk about a time in the past in which you had a great memories, you were enjoying a lot and you were enjoying the success of your career, or you had a beautiful memories. So instead of saying that much information, इतनी information बताने से अच्छा आप simply एक phrase इस्तेमाल करोगे, halcyon days of my life, and that's it. For example, he recalled the halcyon days of his life in his 60s. अब इसी एग्जाम्पल को अगर हम बिना फ्रेज इस्तेमाल करें तो क्या कहना पड़ेगा? मीन्स व्हेन ही वाज इन हिज 60s ही यूज्ड टू रिमेंबर हिज मोस्ट मेमोरेबल डेज ऑफ हिज लाइफ. ही वाज टॉकिंग अबाउट इट, ही वाज टॉकिंग अबाउट हिज सक्सेस, हिज हैप्पी मोमेंट एंड सो मेनी डिफरेंट इंसिडेंसेस. इतना सब कुछ कहने से अच्छा आप सिंपली कहोगे ही रिकॉल्ड द halcyon days of his life in his 60s, और वो सब इंफॉर्मेशन हमें एक लाइन में मिल जाएगी. सो दैट्स व्हाई दिस फ्रेज इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो प्लीज लर्न बाय हार्ट guys. We have a next phrase, meet persons halfway. इस phrase में हम जो ये person word है इसको replace कर सकते हैं by word like him, his, her, them. जो हमारा subject होगा उसके हिसाब से हम उसको change कर सकते हैं. And the meaning of this phrase के बीच में मिलना. Especially guys, ये जो phrase है हम business field में इस्तेमाल कर सकते हैं. Means when you are getting agree for a certain amount after negotiation, or when you are getting agree for compromising at a certain condition, so instead of saying that much information, आप simply कहोगे meet persons halfway. Example, he wanted to bring the price down from 20,000 to 10,000, so I offered to meet him halfway at a 15,000. यहाँ पे हमने him को highlight किया. The reason, because somewhere you can observe जहाँ पे यहाँ पे हमने subject ही इस्तेमाल किया, इसलिए हमने यहाँ पे persons की जगह पे him इस word का इस्तेमाल किया. So guys, this is a very beautiful phrase और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं हम day to day basis में. So please learn by heart. We have a next phrase, and give a big hand to. It's a very common phrase. हमने बहुत बार इस्तेमाल की भी होगी, बहुत ही रेगुलरली हम सुनते भी हैं. मीन्स व्हाट्स द मीनिंग ऑफ अ गिव अ बिग हैंड टू? इट मीन्स के लिए तालियां बजाना. जब कभी भी आप किसी को अप्रिशिएट कर रहे हो या अगर आप किसी को एडमायर कर रहे हो, उसके काम को एडमायर कर रहे हो और उसके लिए कुछ आप अपना आप अपनी बॉडी लैंग्वेज से वो दिखाना चाहते हो, सो इन दैट टाइम वी कैन डेफिनेटली यूज अ गिव अ बिग हैंड टू. मीन्स लाइक इट्स टू अपलॉड समवन एक्सटेंसिवली or often as a show of approval or appreciation. So whenever you want to appreciate someone by showing your
a gesture, so that time we will use the phrase give a big hand to. Example, let's give our special guest a big hand. So ये बहुत ही common phrase है जो हम बहुत regularly इस्तेमाल करते हैं. So please learn by heart guys. Next phrase we have a be hard put to it. ये जो phrase है इसमें जो be word है ये replaceable है. इसकी जगह पे हम am, is, are, was, were लगा सकते हैं. Also we can put be also. It depends upon a pattern which we are using and it depends upon a subject too. Okay? इसका मतलब होता है बहुत ही कठिन. Means when you are finding something very difficult to do, उस situation में instead of saying that much information आप simply कहोगे be hard put to it. For example, they were hard put to find a place to get settled in that city. अगर यही सेंटेंस हम बिना फ्रेज से बोले तो क्या होगा? लाइक यू नो इट वाज वेरी डिफिकल्ट टाइम टू देम टू गेट वेरी प्रॉपर प्लेस टू सेटल इन दैट सिटी, और दे वर नॉट गेटिंग प्रॉपर गाइडेंस फॉर दैट, दे वर नॉट गेटिंग प्रॉपर शेल्टर टू लिव इन दैट पर्टिकुलर सिटी. इतना सब कुछ कहने से अच्छा आप सिंपली कहो दे वर हार्ड पुट टू फाइंड अ प्लेस टू गेट सेटल इन दैट सिटी. यही एक डिफरेंस होता है एक नेटिव स्पीकर में और एक बंदा जो इंग्लिश को एज अ ट्रांसलेशन के से सीखा हुआ हो या वो जो ट्रांसलेटिव तरीके से बात कर रहा हो. सो इफ यू आर यूजिंग इंग्लिश एज अ सेकेंड एंड थर्ड लैंग्वेज तो आप हमेशा ट्रांसलेट करोगे और आपको बहुत डिफिकल्ट होता है बिकॉज यू मेक सो मेनी लाइन्स, यू मेक सो मेनी सेंटेंसेस फॉर वन सिंपल थिंग. तो अगर आप वही नेटिव स्पीकर कहेगा तो वो कहेगा सिंपल दे वर हार्ड पुट टू फाइंड अ प्लेस टू गेट सेटल इन दैट सिटी, और उसको वही सेम इंफॉर्मेशन कम से कम शब्दों में बतानी आएगी. So please learn this skill guys, that's a very important, ये बहुत ही important phrase है. Let's talk about the next phrase that is hard up. इसका मतलब होता है short of money. Means when you're lacking with money, you don't have money a lot and you're going through the very difficult time of your life and in economical manner. So that time आप इस phrase का इस्तेमाल करोगे. In Hindi it is called as पैसों के अभाव में रहना. Example, if you'll say I'm too hard up to buy that Apple Watch. अगर फिर से वही ट्रांसलेटरी तरीके से बोले तो क्या बोलेंगे? लाइक आई वाज लैकिंग विद द मनी, आई हैड नो मनी टू बाय दैट एप्पल वॉच, और आई वाज शॉर्ट ऑफ मनी एंड आई कुडंट बाय दैट एप्पल वॉच इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन एज आई वाज गोइंग थ्रू अ वेरी डिफिकल्ट टाइम इन माई लाइफ. इतना सब कुछ कहने से आप सिंपली कह दो आई एम टू हार्ड अप टू बाय दैट एप्पल वॉच एंड दैट्स इट. यू विल गेट ऑल इन्फॉर्मेशन इन वन सिंगल लाइन. तो ये बहुत ही अच्छी फ्रेज है, प्लीज लर्न बाय हार्ट गाइज. वी हैव अ नेक्स्ट फ्रेज हार्ड एंड फास्ट. ये जो फ्रेज है स्पेसिफिकली डेडिकेटेड है रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए. मींस व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन व्हिच इज गवर्न बाय सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट अथॉरिटीज, और व्हेनेवर यू टॉक अबाउट स्ट्रिक्ट रूल्स or some sort of a restriction which are given by a certain organization on their employees or government authorities on the people, so instead of saying that much information आप simply कहोगे hard and fast. Example, our company has hard and fast rules against drinking and smoking. फिर से वही करेंगे. अगर यही सेंटेंस बिना फ्रेज से कहे तो क्या होगा? Like our company has very strict rules and they were not allowing any employee to drink or smoke in the company premises. If anybody would do that, then they were taking strict actions against them. इतना क्यों कहना है? सिंपली आप कहो our company has hard and fast rules against drinking and smoking. तो एक सेंटेंस में हमें सब इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. So that's the beauty of this phrase. So please use this phrase guys very regularly. We can utilize this phrase. Next phrase we have that is पिक अप द गॉन्टलेट और टेक अप द गॉन्टलेट. इस फ्रेज में पिकअप और टेकअप ये जो दो वर्ड है वो एक दूसरे को रिप्लेसेबल है, सब्सटीट्यूट है. आप पिकअप द गॉन्टलेट कहिए या टेकअप द गॉन्टलेट कहिए, दोनों का मतलब सेम आएगा. एंड द मीनिंग ऑफ दिस फ्रेज चुनौती स्वीकारना मीन्स व्हेन यू आर एक्सेप्टिंग द चैलेंज और व्हेन यू फाइंड समथिंग वेरी चैलेंजिंग एंड यू एक्सेप्ट इट. सो इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट आप सिंपली कहोगे पिक अप द गॉन्टलेट. एग्जाम्पल, आई हैड नो चॉइस बट टू टेक अप द गॉन्टलेट. देखो कितनी सरल तरीके से हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं. सो लाइक इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट ही वाज चैलेंजिंग मी एंड आई हैड नो ऑप्शंस एंड देन आई वाज एक्सेप्टेड द चैलेंज एंड देन वी डिड दिस थिंग. क्यों कहना इतना? सिंपली कह लीजिए आई हैड नो चॉइस बट टू टेक अप द गॉन्टलेट, और एक लाइन में हम सब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकेंगे. सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फ्रेज. वंस अगेन गाइस प्लीज लर्न बाय हार्ट. वी हैव अ नेक्स्ट फ्रेज हियर, थ्रो डाउन द गॉन्टलेट और फ्लिंग डाउन द गॉन्टलेट. यहाँ पे फ्लिंग और थ्रो एक दूसरे को सब्सटीट्यूट है या रिप्लेसेबल वर्ड है, आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो. और ये जो फ्रेज है इट इज एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ द फ्रेज विच वी हैव ऑलरेडी लर्न्ड. उस फ्रेज का मतलब होता है चुनौती स्वीकारना, इसका मतलब होता है चुनौती देना. मीन्स व्हेन यू आर
challenging someone for something. Whenever you give a challenge to someone, so instead of saying that much, आप simply कहोगे throw down the gauntlet. Example, he threw down the gauntlet to complete the project in a due course. फिर से वही करके देखेंगे. अगर हमें यही सेंटेंस बिना फ्रेज से कहना है तो क्या कहेंगे? Like he was challenged me that I should complete the work and he was given very less amount of a time and I was doing very hard. I was doing tremendous hard work to complete the task. कितना कुछ कहना है उससे अच्छा सिंपली कह लीजिए he threw down the gauntlet to complete the project in a due course. और एक लाइन में हम सब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं. So it is very important phrase once again guys. चलो इसको भी लर्न करेंगे. नेक्स्ट फ्रेज वी हैव गेन टाइम. मीन्स व्हेनेवर यू कॉज समथिंग टू बी डिलेड और सो दैट मोर टाइम इज अवेलेबल टू डू व्हाट इज नीडेड. मीन्स आपको जब कभी भी कुछ और काम करने के लिए आप कोई इंटेंशनली चीज़ डिले कर रहे हो, आप उसके लिए समय निकाल रहे हो, तो उस वक्त हम इस फ्रेज का इस्तेमाल करेंगे. एग्जाम्पल, हर लॉयर्स आर डिलेइंग द ट्रायल टू गेन टाइम टू प्रिपेयर देयर डिफेंस. फिर से वही, अगर यही सेंटेंस बिना फ्रेज से बोले तो क्या कहना पड़ेगा? लाइक हर लॉयर्स वर इंटेंशनली डिलेइंग द केस बिकॉज दे वांटेड टू collect the evidence and they wanted to collect the proofs, so that's why they were intentionally delaying the case for a long time. इतना सब कुछ कहने से अच्छा आप सिंपली कहो her lawyers are delaying the trial to gain the time to prepare their defense. तो एक लाइन में हमें सब इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. So it's again very important phrase guys. We have a last phrase here, for good. इसका मतलब होता है permanently और forever. जब हमें कहना है हमेशा के लिए, सो इंस्टेड ऑफ सेइंग फॉर एवर और परमानेंटली आप सिंपली यूज करोगे फॉर गुड. एग्जाम्पल, राहुल हैड बेटर लीव हर फॉर गुड एज दे एंट हैप्पी विथ ईच अदर. फिर से वही करके देखेंगे. अगर यही सेंटेंस को हम बिना फ्रेज से बोले तो क्या होगा? लाइक इट वुड बी वेरी गुड दैट राहुल शुड लीव हर फॉर एवर बिकॉज एनी हाउ दे आर नॉट हैप्पी विथ ईच अदर, सो दे आर वेस्टिंग देयर टाइम एंड एनर्जी. सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट इट वुड बी रियली ग्रेट दैट राहुल शुड लीव हर फॉर एवर इन हिज लाइफ. कितना कुछ कहना पड़ा. इतना सब कुछ हम सिर्फ दो लाइन में कह सकते हैं. दैट राहुल हैड बेटर लीव हर फॉर गुड एज दे एंट हैप्पी विथ ईच अदर. तो एक दो लाइन में हम पूरी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, तो हमें बहुत कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होगी. सो इट इज आवर लास्ट फ्रेज गाइज. बहुत ही अच्छी फ्रेज है, प्लीज लर्न बाय हार्ट. सो दीज आर आवर 10 phrases which we have learned for a day. Let's revise at once. Our first phrase we had, that is halcyon days. इसका मतलब होता है अतीत के सुनहरे पल और अतीत के सुनहरे दिन. Means whenever you talk about a time in your past in which you are enjoying, you had a great memories and you were very successful, instead of saying that much, आप simply कहोगे halcyon days of my life और आपको वो सब information मिल जाएगी. Our next phrase we have meet halfway. हमने पढ़ा था इस phrase के अंदर person ये जो word है हम इसको replace कर सकते हैं by his, him, her और them. जो हमें हमारे subject होगे उसके हिसाब से हम उसको replace करेंगे. और ये phrase specifically dedicated है business field के लिए. Means whenever you talk about any negotiation or negotiable amount, or when you're getting agree for a certain condition and you're ready for compromising at a certain condition, so instead of saying that much information आप simply कहोगे meet persons halfway. We have a next phrase give a big hand to. बहुत ही common phrase है. किसी के लिए तालियां बजाना, किसी के लिए हम तालियां बजाते हैं, तो उस वक्त हम इस phrase का इस्तेमाल करेंगे. Next phrase we have be hard to treat. यहाँ पे हमने बताया था कि जो be word है ये replaceable है. इसके जगह पे हम am, is, are, was, were लगा सकते हैं. यहाँ पे भी हम रख सकते हैं. इट डिपेंड्स अपॉन अ पैटर्न विच वी आर यूजिंग. और इसका मतलब होता है you're finding something very difficult to do. तो instead of saying that, मैंने कुछ कठिन लगना हमें कुछ करने के लिए, so instead of saying that आप simply phrase इस्तेमाल करोगे be hard put to it. Next phrase we have hard up. hard up का मतलब you're short of money. जब आपके पास पैसों का अभाव है, you're not economically strong that time, so instead of saying that आप simply कहोगे hard up. इसका मतलब होता है पैसों के अभाव में रहना. Next phrase we have hard and fast. This phrase is dedicated for rules and regulations. Whenever you talk about any strong rules and regulation or some sort of a restriction which is governed by certain organization or certain government authorities, so instead of saying that much आप simply कहोगे hard and fast. सख्त कानून या सख्त निर्देश हम इसको हिंदी में कहते हैं. It's very beautiful phrase once again guys. We have a next phrase pick up the gauntlet or throw down the gauntlet. ये दोनों phrases एक दूसरे को opposite है. इस take up the gauntlet का मतलब होता है चुनौती स्वीकारना
एंड थ्रो डाउन द गॉन्टलेट का मतलब होता है चुनौती देना. सो दिस टू फ्रेजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड बहुत अच्छे से हम इस्तेमाल कर सकते हैं. रेगुलरली हम ऐसी सिचुएशंस आते हैं कि हम इन फ्रेजेस का इस्तेमाल कर सकेंगे. वी हैव अ नेक्स्ट फ्रेज गेन टाइम. गेन टाइम का मतलब लाइक यू आर डीलिंग सर्टन थिंग्स इंटेंशनली टू फाइंड सर्टन टाइम टू डू अनदर वर्क. सो इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट मच आप सिंपली कहोगे गेन टाइम. इसको हिंदी में हम कहते हैं समय निकालना. नेक्स्ट फ्रेज वी हैव फॉर गुड. इसका मतलब होता है हमेशा के लिए. सो इंस्टेड ऑफ सेइंग हमेशा के लिए लाइक फॉर एवर, आप यहाँ पे फ्रेज इस्तेमाल कीजिए फॉर गुड एंड आवर सेंटेंस बिकम्स इन अ वेरी डिफरेंट लेवल. सो गाइज दीज आर द 10 फ्रेजेस फॉर अ डे. प्लीज लर्न बाय हार्ट. अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो इन सभी फ्रेजेस को हर रोज हम इस्तेमाल कर सकते हैं. कोई ना कोई सिचुएशन में ये फ्रेजेस 101% फिट बैठ जाएगी. सो आई रिक्वेस्ट यू वन थिंग, प्लीज लर्न बाय हार्ट. और अगर आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में इनके ऊपर एग्जाम्पल्स बनाइए. इफ देयर विल बी एनी प्रॉब्लम और इफ देयर विल बी एनी मिस्टेक, आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू और आई विल एक्सप्लेन यू. सो गाइज प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट नोटिफिकेशन फॉर द नेक्स्ट वीडियोज. आने वाले समय में हम बहुत अमेजिंग नॉलेज शेयर करने वाले हैं, बट फिलहाल हमारा फोकस वोकैबुलरी पे है. इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न नेक्स्ट 10 phrases and you would enjoy that too. So guys, please learn these 10 phrases for a day. We will meet in the next video. Thank you. Bye.